मनी के पीछे मत भागना। नॉलेज इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, विजडम इज इम्पोर्टेंट। जो बुद्धि है उसे इम्प्लीमेंट करने का इम्पोर्टेंस है, तभी तो तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई दोनों भी आसमान फाड़ सकते हैं। So, hi everyone, welcome to episode 7 of the Career Catalyst. And today we have a very special guest, Mr. Aaron. तो वो एक cloud engineer है. So, welcome Aaron to the episode. Thank you so much for inviting. So, Aaron, tell us about yourself. Hello everyone, my name is Aaron and I live in Bangalore. So I was an engineering graduate. That is basically, if you know, I'm from a mechanical background. Then after that, we have actually graduated. Once after graduating, I came to know that demand is on IT sector. एक चीज तो बताना चाहता हूँ कि लाइक मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर था, मगर यहाँ पे कोई जॉब भी नहीं मिला. एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट जॉब टू गेट एटलीस्ट लो सेल्फ एस्टीम और रॉक बॉटम में था जब आई हैव गिवन 110 इंटरव्यूज. It was like a very horrible time period over here, and I thought I was good for nothing. After that, I saw the watchman next along with me. He cleared AZ 900 wala certificate. The immediate moment I started like अपने ego तो hurt हो गई इसी time. Even I put 5 weeks of time to sit and study, clear the examination. Then I got promoted into this one, technical support for Azure kind of a things. Then like that, I started with sales. Then this is how later in the same company, I don't want to mention the company name, I could not clear one particular certificate. उन्होंने next day मुझे fire करवा दी. So that moment I thought, अबे आज फिर से मुझे rock bottom में ही चलना पड़े. Then after 40 days later, I got into consultancy and it was a software trainee that particular time. So I was a technical support engineer in the first thing, application production सब कुछ करके. I had many designation क्योंकि हम सब में loop होते थे. Then I became a software developer. Then I was simultaneously in that particular time we had a COVID also hit. So COVID में Microsoft ने अच्छे तरह से हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे थे. तब आई वाज सो इंटरेस्टेड, हर दिन पढ़ाई. एक साल में आई हैड कंप्लीटेड 12 सर्टिफिकेट्स आई कैन से. एंड द नेक्स्ट जॉब व्हिच आई टुक ए करियर लीप वाज टू बिकम ए ट्रेनर. So the moment I became trainer, so I started with training. So the first time when I started training, it was a quite a डर लग रहा था. So now currently, if you ask me, I have trained more than 5,000 plus people, more than 480 sections, and to be honest, I teach around 15 subjects. I have no idea how I started the journey. That's all from my end. Okay, okay, wow, that's such an inspiring journey. मतलब really like मतलब कहाँ से आपने start किया और मतलब it's काफी inspiring honestly even for me. तो लाइक कैसे मतलब मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे आप तो मतलब लाइक यू गॉट इंस्पायर्ड बाय योर फ्रेंड या मतलब डायरेक्टली आपने मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कहीं पे टेक्निकली थोड़ा इशू आ रहा हो या आपको लगा हो कि आपको नहीं समझ आ रहा वो चीज व्हेन यू सेड यू स्टार्टेड विद एजी 900 एज योर फर्स्ट स्टार्टेड स्टार्टिंग उसके लिए जर्नी कैसा रहा मतलब या वो कैसे मतलब आया कि ये करना है या उसमें कोई डिफिकल्टीज आई आपको So आकृति मैं सबसे बताना चाहते हैं तुम्हारा 10th standard is not actually the turning point. Your 12th standard is actually the turning point. Okay. ये सब father, mother, whoever is actually listening to this podcast, I would tell you, 12th standard is actually the turning point. तुम यहाँ पे हर दिन पढ़ाई करोगे like and going for JEE advance. मैं तो JEE clear किया हूँ, JEE advance नहीं clear किया. So the JEE main itself was giving you a confidence. The second thing which I would tell if any other parents are looking or any other engineering students आप यहाँ पे देख रहे हैं, I'll tell you engineering marks doesn't matter. वो पहले कंपनी के लिए ही एक्चुअली अंदर घुसने के लिए है. आप कौन सा भी पढ़ लो लाइक इफ यू सी साउथ इंडिया पूरे भर के साउथ इंजीनियर से है. Engineering was a really hard time. You don't know what to apply next in that particular thing. So mechanical engineer, if you know, it is scoped in abroad, and when you finish 4 years, you definitely know you have no value in this uh, industry in India also as well. So next thing, the best part, what happened was I got an internship in ITC Infotech. Okay, ITC is a very huge company. So by God's grace, मुझे एक internship वहाँ पे मिला था. अच्छे वाले managers थे and I worked on Azure AI services. Okay,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज इन 4th ईयर। फिर हमारा डेमो आगे, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का प्रोजेक्ट, सब कुछ मैंने बोला। सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट कंपनी व्हिच आई हैव टू टेल यू, they found out my resume from third party looking for the keywords like Azure AI search, ऐसा वाला कुछ key terms, that is what they were looking for. So आप जब ATS scan करते हो ना, ये terms सब important होती है। तब से वहां पे I used to I have to tell you the secrets. I used to visualize every day joining the company, working myself as a cloud engineer. आपके visualization strength है ना, बहुत important होती है इस कामयाब चीज में। So this is one of the important things I would definitely tell out. I'll tell you one of the simplest thing right now. Being an engineering topper, I used to visualize myself getting the uh, paper out in my hand. Like I can see first class with distinction, 7.0, exactly 7.0 मुझे मिला. I became a university topper. I was like visualize. Same thing for the first company. I used to visualize myself. Hey, this 7.0, ये वाला, like I got the offer letter. मेरा first salary तो बहुत कम था, मगर I used to visualize myself going through the ladders. That was a very important thing. So next was the technical support, going for the Azure. Sometimes Z was my customer, like उनके like 65 crores का, we had that deal actually. So we used to deal with that completely things. तो आपने मतलब लाइक यू टोल्ड अस कि एजी 900 किया, तो उसके बाद आपने कौन-कौन सी और सर्टिफिकेशंस की और कैसे, मतलब क्या टाइमलाइन रहा उनका, और लाइक कैसे यू केप्ट ऑन वर्किंग, और एट द सेम टाइम आपने मतलब सर्टिफिकेशंस की, जैसे आपने बताया कोविड में यू वेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेज, तो और कौन-कौन से मतलब आपने किए जस्ट टू एंड मोटिव वाज टू अपस्किल योरसेल्फ, मतलब कहाँ से आई वो हंगर टू डू मोर? So कोविड के टाइम में दिस वाज द फर्स्ट जॉब व्हेन आई वाज हेडिंग ऑन टू कोविड। तो मेरा फर्स्ट जॉब उन्होंने, मैं हे आई नो यूर वॉचमैन, सो अपने को कोलीग तो एक और वॉचमैन था, ऐसे लाइक पान पर आप ऐसे लगाते वक्त ही सेड ही कंप्लीटेड एजा 900। मेरा तो उस टाइम तो अपने ईगो और जेलेसी दोनों भी आसमान पार चुका था। तब तो लाइक मुझे भी कुछ करना है, एंड व्हेनेवर वो चलते उसको प्रमोशन मिल गया एचआर, मुझे वो एमपी, अपने तो ईगो हर्ट होती है उस टाइम पे। तो लाइक मैंने भी सोचा लेट मी क्लियर एजेट 900। तो 5 वीक तो ले लिए, हर एक पॉइंट मुझे लाइक नोट्स नहीं, नोट से बनाने पड़े थे अपने। कौन कौन मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई मुझे छोड़ दो फिलहाल के लिए, मुझे अभी कुछ बातें नहीं करने के। हर दिन टू अंडरस्टैंड वो कॉन्सेप्ट सब अंदर जाने के लिए यूट्यूब में आई यूज्ड टू सी ब्यूटीफुल वीडियोस अंडरस्टैंड करने के लिए। देन इट वाज इजियर इन दैट पर्टिकुलर टाइम। कुछ एंड प्रैक्टिस पेपर्स उस टाइम बहुत ज्यादा यूडेमी का प्रैक्टिस पेपर्स भी था, मैंने वो सब रेफर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। तो दैट वाज द मोमेंट क्लियर, नेक्स्ट मंडे मुझे लाइक प्रमोशन मिला, हाँ सुपर। So that was ठीक the है। thing actually. And after अच्छा। that, I'll tell you, I started with a Windows server. Then उसके बाद AZ 104, 204, 400, AZ 305. Then सच बताऊं तो like Microsoft में 20 सर्टिफिकेट है, Databricks में few सर्टिफिकेट्स हैं, Sales and Oracle में 3 सर्टिफिकेट है। अभी like almost 35 to 40 सर्टिफिकेट्स हाथ में है। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो अब अगर जैसे क्लाउड में ही जाना चाहिए, तो लॉट ऑफ पीपल वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे एडब्ल्यूएस के लिए जाएं, या फिर मतलब ऐसे एज़्योर के लिए जाएं या जीसीपी के लिए जाएं, तो आपकी मतलब क्या एडवाइस रहेगी इस पे कि क्या करना चाहिए इफ समवनस क्लूलेस? पहले मैं बताता हूँ बेसिक्स में ध्यान दो। कैंपस इंटरव्यू में क्या देखते हैं, फर्स्ट एक फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड में कुछ सर्च वाला फंक्शन रेगेक्स करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, बस। क्लाउड एआई सब कुछ वेट करेंगे, मगर आपका बेसिक्स तो वेट नहीं होने वाले यहाँ पे। अच्छा तरह से बेसिक्स पढ़ो। और जो भी हमारे साथ करते हैं ना, एक मिस्टेक्स है जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बताते हैं, दैट दे गो एंड बाय द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स बिकने वाले के लिए प्रॉफिट है, ये लोगों के लिए लॉस है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम व्हिच वी फेस इन इंडस्ट्री नाउ। If you go for an average cloud engineering, it can go up to 25 lakhs per annum, or European countries में बहुत ज़्यादा, it can go from 40 to 65 lakhs per annum. Europe side में if you're taking per day, you can earn up to 40 to 45 thousand per day. So that's how much you get to have in freelancing in that particular time. And if you're learning into many skills over there, both hai. Now coming to this,
AWS, Azure, GCP, आप कौन सा भी ले लो, एक चीज तो बहुत कॉमन है एक्चुअली, दैट इज द इंटरफेस इज गोइंग टू बी चेंज्ड, प्राइसिंग थोड़ा डिफरेंस होगा, नेमिंग टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होगा, बाकी सबके सब सेम ही हो गए इसमें एक्चुअली. Okay, if you say IAM, everything is identity and access management, all the services यहाँ पे वहां पे सभी में सेम ही है actually. Just that the story of AWS, they have started 4 years prior. Azure and GCP, they have got 33% of the market. Doesn't mean Azure and GCP are less. Every three of them are same. ट्रेनिंग के टाइम एक चीज बताता हूँ, इफ यू सी माइक्रोसॉफ्ट एजर ये चीपेस्ट है ट्रेनिंग के टाइम, बट व्हेन यू सी GCP एंड AWS ये थोड़ा बहुत कॉस्टली होती है. But either you take a cloud engineer, don't stick only to cloud engineering. You have many other engineering. You have site reliability engineering, you have platform engineering, staff engineering, then you also have cloud network engineer, cloud security engineer. एक ही एक चीज में मत ले, you have open-ended things over here. तो ऐसे भी चल ओके, सकते हैं. ठीक है। तो मतलब कौन-कौन सी ऐसे अलग-अलग जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल उनको सिर्फ ये होता है कि क्लाउड इंजीनियर बनना है, बट एज़ यू मेंशन्ड कि और भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जॉब डेज़िग्नेशंस हैं। तो आप उनको मतलब इन डिटेल एक बार बता सकते हो सो दैट मतलब पीपल गेट अवेयर कि और कौन-कौन से, बिकॉज़ पीपल आर यूजुअली नॉट एनलाइटेंड अबाउट इट कि ये सब भी ओके है। हुँ, ओके, एक चीज तो बताना चाहता हूँ, लाइक सब लोग प्रोग्रामिंग तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छे तरह से पढ़ना है. ओके, वो C++, जावा, पाइथन, C#, .NET, वेनिला, बटरस्कॉच, जो कौन सा भी फ्रूट लो, वहां के कुछ भी ले लो, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छा तरह से आना है. आई नो 12 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इससे पहले मुझे कोई जावा भी नहीं आता था. और आपके जो भी स्किल्स है ना, हर दिन अपडेट करने ही है. देयर इज अ सेइंग एक्चुअली, हर दिन if you do nothing, that is 1% is nothing. If you see from the next 1 year, it's going to be 1 to the power of 365, it's going to be 1. मगर हर दिन छोटे छोटे मीन्स इतना छोटे 1.01 exponential exponentially to 365, this is going to be 37%. आप एक ईयर में 37% इंप्रूव कर सकते हो, तो इतना हर दिन छोटे छोटे, एटलीस्ट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ता हूँ एक्चुअली. So my legs are in every single thing inside the cloud itself. Now coming to the cloud, okay, थोड़ा तो experience लेना है इसमें. Now they have started in engineering colleges, cloud का courses भी है actually. Some colleges do prefer to give cloud engineering. वहां पे जब चलता हूँ, बच्चों के तो इंटरेस्ट नहीं होते हैं. But when the requirement come, when the thing is getting important in a company, that moment it's a hard it for them. They will start learning the cloud. One sad part I would tell you, what most of the engineering college don't have is they don't have GitHub. Okay, and thankfully they don't have a particular subject called Kubernetes. Why I'm saying this two things? Because 100% GitHub to use होते हैं, and 95% of the backend is working on Kubernetes. So if you're working on Kubernetes, वहां पे most of the company will work on this. Now अब तो like इनका competition और बढ़ गए, क्योंकि AI भी आ गए, न्यूज चैनल न्यूज रिपोर्टर्स का like they have gone now, अभी उनके पास भी AI आ गए. So you have to be knowing how to scale up yourself in AI. So Azure AI, lots of services are there. Gen AI, you have to see. So if you see a fresher right now, he was earning around 3.5 lakhs per annum. The moment he learned and upskilled himself in Gen AI, he got a package of 16 lakhs per annum. तो इतना डिमांड हो गए in the competition अपने तो अभी. So I am now currently working like a data scientist and artificial intelligence engineer. So that's how the journey goes on. Yeah. ओके, सो ये जो ट्रांज़िशन रही थी टू द एआई इंजीनियर, सो वो लाइक इवेंचुअली क्लाउड से ही आगे स्टार्ट हुई, लाइक यू गॉट हैंड्स Yes. ऑन इन अ ओके, in your own job. So can you tell our audience like how did you transition into AI? Because a lot of people think that cloud engineers are probably not safe by AI or they might get replaced. So is No, that oh, it's not definitely no. Okay. एक जमाने में था लाइक क्लाउड इंजीनियर्स का डिमांड था. अभी कभी कभी लोग सेफ जोन के लिए हाइब्रिड में करते हैं. हाइब्रिड मीन्स दिस वन, ऑन प्रेम एंड क्लाउड दोनों में उनका कनेक्शन भी करवा देना, क्योंकि प्राइसिंग कॉस्ट में देखना है.
फिर एआई तो 2020 में स्टार्ट हो गया सडनली, एंड 2020 નું बूम्ड लाइक एनीथिंग। अभी तो आप कुछ भी ले लो, एआई तो होने वाला है, डॉट एआई से कुछ काम तो करना ही पड़ेगा आपको आकृति। सो क्लाउड इंजीनियरिंग, व्हाट इज डेंजरस मैं बताता हूँ। इफ यू आर यूजिंग योर ओन क्रेडिट कार्ड, वो डेंजरस होती है। एक मंथ के लिए परवाह नहीं, बट द मोमेंट यू गो पे एज यू गो सर्विस, आपके हाथ में क्या छूटने वाला है तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, उनके भी पता चलने। बट एक चीज आप कर सकते हैं, लाइक कॉल द customer support and say, hey, I'm a student and I would like to get a refund on this। एक मिनट, like 1 week में आपको refund मिलेगा। तो this one was not educated by most of them। so secondly, आप कुछ भी ट्रेनिंग कर लो, अपने मन से करना है। ओके, सो व्हेन आई ट्रेन एनीबॉडी, एक चीज तो मैं बताता हूँ उनके लिए, लाइक मेक श्योर दैट यू आर सिंसियरली स्टडी। अब जो भी लैब्स करना है वो सब लैब्स करो अच्छे तरह से, क्योंकि आप कोई भी क्लाउड कंपनी में चलो आकृति, एक चीज तो मांगते हैं, सर्टिफिकेट। आपके एमएस वाला सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होगा। एजर वाला, एडब्ल्यूएस वाला, जीसीपी वाला, सेल्सफोर्स वाला, जो भी है, वो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अभी वंस अपॉन अ टाइम आई थॉट मुझे अभी मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरा एक और चीज है, मैं अभी ट्रिपल आईटी भी, आईआईटी, एनआईटी को भी पढ़ाता हूँ क्लाउड, और मैं ऐसे लग रहा है कि लाइक मैं क्यों पढ़ूं यार, मैं उनको पढ़ाता हूँ, फिर मैं क्यों लाइक एमटेक लेना है। डिग्री के लिए तो नहीं होने वाला अपना सेटिस्फेक्शन, मैं उनके लिए लाइक इवेल्युएट कर रहा हूँ उनका पेपर्स। तो लाइक you cannot write your production answers over there for the teachers, उनको भी समझने नहीं आने वाला। it's going to be, I don't need to take it up। so make sure you have a passion। वो passion बहुत बहुत important होती है। जब वो like मुझे एक चीज बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट फॉर एवरीवन। ओके, दूसरा वाला चीज, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपके एक लाइन होगा, व्हाट आई हैव टू से इज इट्स कॉल्ड वेव ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वेव ऑफ फॉर्च्यून के मतलब, जो आपके है ऑटोमेटिकली जब आएगा, आप खुश भी होंगे, आप सेटिस्फाई भी होंगे, और आपके काम भी बहुत अच्छे तरह से आप करोगे। आई वॉज टीचिंग माई क्लासमेट्स व्हेन नोबडी, इवन इफ द टीचर वॉज एब्सेंट, एक एक लोगों के लिए एक एक डिफरेंट टाइप का तरीका होते हैं उनको मन में समझने के लिए। मैं उनके लाइक आपका इंटरेस्ट क्या है वो बताते हैं, जीसस क्राइस्ट। कभी लोगों के लिए फूड होगा, कभी लोगों के लिए लाइक जिम होगा। वो एग्जाम्पल्स हमें उनके हिसाब से कर लिया। वो लोग मुझसे भी ज्यादा मार्क लेती थी, मैं तो लाइक मैं अच्छा तरह से पढ़ ले, वो लोग मुझसे भी ज्यादा मार्क लेते, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा तरह से समझना है। सो आई लर्न ये चीज कि मुझे टीचिंग अच्छे लगते हैं, ट्रेनिंग चलेगा, लाइक दैट्स वेयर आई फील हैप्पीनेस। बहुत अच्छा, अभी हैप्पी हूँ, आई फील पर्पस। एंड उसमें बोनस आ गया कि आई कैन ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया। अपने तो लाइक दैट इज कंपनी तो पे करते हैं, हम तो लाइक ट्रैवल कर कर के थक गए होते हैं। दैट इज हाउ लाइफ गोज ब्यूटिफुली। ओके, क्लाउड इंजीनियरिंग बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। इवन इफ यू आर बीकॉम पास ऑल्सो यू कैन बिकम अ क्लाउड इंजीनियर। सर्टिफिकेट है, कर सकते हैं। आपको AZ900 आती है, कर सकते हैं, वहां से आप स्केल अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। या मैं यही पूछने लगी थी कि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई कर सकता है या नहीं? बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल डेफिनेटली। वो ऐसे या कोडिंग से हेजिटेट करते हैं। तो आप एक क्लियर रोड मैप बता सकते हैं, इफ समवन्स फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो वो कैसे एक क्लाउड इंजीनियर, एटलीस्ट एन एसोसिएट लेवल इंजीनियर बन जाए? लाइक व्हाट्स द रोड ठीक है, मैप? मैं बताता हूँ एक चीज। अभी रिसेंटली ओके, मेरा स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है। ओके, मैं सच बताऊं, लाइक एक बंदा है, उसका नाम है पवित्रन। ओके, उन्होंने क्लाउड का कोर्स भी किया था मेरे साथ, एंड आई मैं उनका मेंटर था। वो 3 साल सिविल इंजीनियर था, 3 साल सिविल इंजीनियर। भाई साहब को लाइक यहाँ पे लाइक रोल भी नहीं मिलता है अभी, तो लाइक क्या रोल बना दूं उनको, क्या पता नहीं। मगर एक चीज तो हमें करना पड़ेगा, उसको एक्टिव रोल का वॉइस तो पैसिव पैसिव वॉइस में हमको उसका रेज्यूमे टेलर करना पड़ेगा। एजोर ये, एजोर वो, सब कुछ नॉलेज है भाई साहब को, मैंने ही लाइक अच्छे तरह से पढ़ा है। क्वेश्चन भी इंटरव्यू ग्रिल करना पड़ेगा, क्या क्या पूछना है, क्या क्या नहीं। वो जो भी अपने इंटरव्यू से हिसाब से करते हैं, हमें पता नहीं चलना है, मगर अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है। नाउ रिसेंटली उसका जॉब 2 कंपनी में लेके एज अ Azure DevOps engineer, and he's 3 years in civil engineer। He has no prior experience। He's getting an earning of 12 lakhs per annum। Okay,
सो वेदर सेम गोज, बीकॉम वाला एक बंदा है, ही डजंट लाइक कोडिंग, कोडिंग I don't like coding, I avoid, but coding likes me, which he cannot avoid. मगर वो तो avoid कर चुका है. Now you have a operations role in Azure, this one, operations role. आप AI ले लो, security ले लो. Security doesn't require coding. आप security में, cloud security में you have IAM, you have secure, this one Sentinel, you also have Microsoft Purview, compliance वाला जो भी है, architecting के लिए बहुत experience करना होगा. तो वहां से भी आपको you can actually become a good engineer also. बीकॉम वाले graduates ऐसे भी कर सकते हैं. एंड हमारे पास HR भी है जो लाइक थॉट लेट मी ट्राई इंजीनियरिंग, उनके जब ट्राई आ गया स्टार्ट होने वाला, एंड दे आर आल्सो डूइंग गुड राइट नाउ. तो कोई भी कर सकता है, सर्टिफिकेट है, आप ऊपर चल सकते हैं. ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेशंस, तो कैसे कोई मतलब स्टार्ट कर सकता है विद सर्टिफिकेशंस, लाइक व्हाट्स द फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो आप रेकमेंड करोगे, लाइक इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट इन क्लाउड एंड ही डजंट नो कोडिंग और एनीथिंग, बट स्टिल उसको मतलब ही इज पैशनेट टू गो इनटू क्लाउड, तो व्हाट्स योर सजेशन एंड रिकमेंडेशन? ओके, अभी कोई भी स्टार्ट करना हो तो लाइक इफ इट इज कॉलेज वाला स्टूडेंट्स लेवल, if it is college level students level, AZ 900, Azure Fundamentals, AWS Cloud Practitioner and GCP Practitioner, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज फॉर कॉलेज लेवल. अभी जो भी अभी 1 or 2 years में if they are having any kind of experience, then it is always better skip the basic part. Basic part का training होना है, मगर go for the higher level, that is associate level. Yeah, associate level it can be AZ 104, Azure Admin, AWS Solution Architect, Associate, and GCP this one Associate. वहां पे उनका administrator का you have to take. Then if you have around 6 years or something of experience, तो अभी इन लोगों के लिए AZ 305 Solution Architect, AWS Solution Architect Professional, and GCP Solution Architect Professional. These are the main ones. अभी if any students is willing to go in cloud security, let's imagine cloud security में उनको चलना है, तो उसका पहले है SC 900. Okay, same if there is no security basics in AWS or GCP, but SC 900 is for Microsoft wala. Then you can actually go for later on, if 2 years, if they want have some experience in security, they can now start going for SC 200, SC 300, SC 400, AZ 500 for security. So now at least they have at least one of the certificate they can go. Plus AWS has its own security. AWS security is there, but वो तो specialty level का है actually. So you have to have minimum 10 years of experience उसमें. Then GCP has like minimum 6 years of experience for GCP security. तो आपके जो interest है आप चल सकते हैं. College level always go with practitioner or fundamentals. 2 years of experience, go with intermediate. 6 years of experience, go for the advanced and professionals expert level. So that is the recommendation one. ओके। तो ये जो आपने मेंशन किया लाइक 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो आर यू रेफरिंग टू मतलब प्रॉपर लाइक एक्सपीरियंस इन क्लाउड, या मतलब लाइक जस्ट इन एनी टेक्निकल जॉब? क्लाउड का थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना ही है, क्योंकि जब सी मैं तो अपना लाइक 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे तो, मगर अभी भी आई ट्रेन फ्रॉम 0 टिल 30 इयर्स वाला एक्सपीरियंस को. सो इवन इफ अ 30-year-old बंदा को चाहिए कुछ ना कुछ नॉलेज, तो उसका प्रोडक्शन नॉलेज भी अच्छा होना है. तो उनका वो रिकमेंडेशन, वो क्लाउड में कुछ ना कुछ उखाड़ना ही है. बस उखाड़ लिया था तो उनका समझ में आ गया. नहीं समझ में आया, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा उनको. उनको वो तो इम्पोर्टेंट है. एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट उनको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जब एक मिस्टेक करती है ना, नुकसान पूरा कंपनी का भुगतना पड़ता है क्लाउड सोल्यूशन में. तो वो इम्पोर्टेंट है आकृति. ठीक है, बढ़िया। तो अगर जैसे कोई लाइक समवन्स वर्किंग अ जॉब और वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है एंड ही डजंट वांट टू गो फॉर द बेसिक प्रैक्टिशनर वाला जो है सर्टिफिकेशन, तो इज दैट ओके टू स्किप इट, लाइक वो डायरेक्टली एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं, और इज इट लाइक रिकमेंडेड एज यू मेंशन्ड कि फाउंडेशनल नॉलेज मस्ट बी स्ट्रांग? फाउंडेशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट अगले वाला कॉन्सेप्ट उससे भी बहुत नुकसान होने वाला है. सो उस टाइम तो लाइक उनको रिस्क नहीं लेने का, पहले फाउंडेशन वाला क्लियर करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस है, सुपर
मैंने ये तो एटलीस्ट क्लियर कर दिया, नेक्स्ट उनके लिए वो वाला अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, AZ900 AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, GCP का कुछ प्रैक्टिशनर ले लिया तो मिनिमम तो आपको इन्फोसिस से एटलीस्ट कॉल तो आएगा, क्योंकि एटलीस्ट वो कंपनी तो अपने रिक्वायरमेंट। मगर आप जब एक कौन सा भी क्लाउड में चले जाओ, मिनिमम वो देखते हैं एक तो सर्टिफिकेट होना जरूरी तो है। हम तो प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हैं, हम तो लाइक उतना तो हमारे खून में तो है, मगर करना ही पड़ा था। ओके, सो Okay. इट हैपेंस, वेदर यू आर अ जावा डेवलपर आल्सो, ही विल पुट यू द फोर्स दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस, क्योंकि आप एक सर्विस यूज करते हो, लेट्स इमेजिन आप ब्लॉब स्टोरेज यूज करते हो, S3 यूज करते हो, कुछ भी स्टोरेज का, उसके लिए तो पूरे के पूरे सर्टिफिकेट ही हमें करना पड़ता है। ओके, सो मतलब सर्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि वो रेज्यूमे पे जब तक नहीं है तो यू कांट गेट हायर्ड रियली। एग्जैक्टली वो तो है। ओके। एक चीज सर्टिफिकेट का एडवांटेज बताता हूँ, सर्टिफिकेट है, जल्दी कोई भी सर्टिफिकेट बना सकता है, एनीबडी कैन क्लियर द सर्टिफिकेट। नुकसान होती है जब इंटरव्यू पे चलती है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट वो पूछते हैं, तभी तो लाइक हमें लाइक हे भगवान, मैंने पढ़ा है क्या, ये किधर पढ़ा हूँ, मगर आता ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे ही अटकते, यू नो दैट यू गो फॉर द वाइवा एग्जाम एंड यू नो यू स्टडीड वेल, मगर जब वाइवा जब पूछते हैं हमें लाइक अरे 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 मगर नहीं आ रहे, वो स्ट्रेस होती है ना, वो अलग चीज होती है तब इंटरव्यू के टाइम। एंड दे विल आस्क बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट, आप कैसे पैसे कम कर सकते हैं फॉर द क्लाइंट, उतना विन विन सिचुएशन होगा। दैट इज हाउ cloud is actually helping on-prem to cloud. Okay. So, okay, Aaron, let's talk about the hands-on labs. Like, ठीक है, theoretical part तो someone can learn, but what about the labs? Like, is it difficult या कैसे कोई practice कर सकता है for the labs? मैंने एक चीज बोला था, मैं हर दिन 3 घंटे तो पढ़ता हूँ। वाई आई एम स्टडिंग, आपको पता चलने, आखिरी हर दिन क्लाउड में अपडेट हो जाती है, हर दिन। ओके, हर दिन का मतलब ये छोटा, कल मैं लाइक एटलीस्ट 4 डेज का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 3 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ डे ऐसे होकर लाइक ये नहीं था कल, क्या हो गया, तभी पता चलेगा लाइक अपडेट होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज होगा, तो हमारा सर्टिफिकेट का वैलिडिटी भी चेंज हो जाती है उसमें। ओके, 3 साल हो तो 3 साल, मगर लाइक आफ्टर यू सी आफ्टर 3 इयर्स पूरे के पूरे चेंज ही होगा एक इंटरफेस में। इवन क्लाउड इज इंप्रूविंग 1% एवरी डे, कौन सा सर्विस में पता नहीं, मगर होता है हर दिन। So, hands-on labs very important है। When you get labs, they will put policies ताकि तुम दूसरा वाला कुछ ना टच करो। But it's very important. The more you practice, the faster you grasp the concept. And आपको theoretical concept बहुत important है। Go for draw.io, make a solution architect diagrams over there. That is also important. And how you make the architecture is also very important. क्योंकि आपका प्राइस एक चीज यहाँ पे हो गया, दूसरा चीज इम्पैक्ट होगा वहां पे। So you have to know how to counteract that. फिर hands on labs are very important, क्योंकि नहीं किया अब बिगड़ जाओगे वहां पे, इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि इंटरव्यू लैब्स के अंदर जो भी कुछ किया हम बता सकते। ठीक है, तो for the labs, like, ऐसे open source documentation available है, या do you recommend कि people should, enroll in a course or something, or like directly या self learning is fine too? एक चीज तो बताना चाहता हूँ कि लाइक आपका स्टूडेंट अकाउंट हुआ तो इफ यू हैव अ स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, ओके, सो विच स्टॉप्स एट edu.in, वो स्टूडेंट अकाउंट यूज करके आप पहले यू कैन गो फॉर AWS एंड Azure, you will get a huge discount in that. Okay, next one, आपके पास तो रुपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हुआ तो यूज नहीं कर सकते, मिनिमम अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा कार्ड एंड दिस वन मास्टर कार्ड का at least if you use 2 rupees will get cut from that. Okay, एक मंथ के लिए आप सिंसियरली आप ट्राई किया तो there is a big limitations in this, मगर आप कर सकते हैं, you can actually have this whole things one very very well. Okay, now if you're going for any enrollment for any kind of a training, if you're learning Azure, highly recommended is have AZ400 का lords key. क्यों? Because if you're taking any company like Scalable and Virigo, or there are many companies who's giving this particular labs. So if you just take AZ400 ka labs, that is hardly around $7. It's worth it. You can practice
for 30 days straight, $100, and you can completely use that very, very well. $7 and $100 you can actually see. Baki ke baki, if you're trying route, if you're taking GCP, it is like $1,000, I can say, for training itself. It's a huge amount. When you compare to AWS, you have to have your own subscription. एकदम पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका बैंकरप्सी जब होगा पता नहीं, मगर होगा। इतना सारे खून चूसने वाले पैसे लूट लेंगे वहां पे। ओके, so be careful, take your training accordingly in the very, very right version. It's always the best. Okay, wonderful. ठीक है, that's amazing advice. So, like, okay, so what's the final piece of advice, you'll give to anyone who wants to switch to cloud? स्विच टू क्लाउड, एक चीज तो बताना, लाइक पहले आपको मन में होना है कि लाइक आप राइट बात में हो। ओके, सो एक अब ना शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, इफ यू डिजायर समथिंग विद योर फुल हार्टेड, द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर इट टू मेक इट हैपन फॉर यू। पहले ये चीज आपको पता चलना है आपको क्या होना है। इट्स नॉट लाइक क्लाउड में पैसे ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा पैसे है। सच बताऊं, लाइक व्हेन आई सी ए फ्रेशर को पता चलना है डू यू रियली लाइक कोडिंग, वो बता नहीं, देन व्हाई? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, मनी के पीछे मत भागना। नॉलेज इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, विजडम इज इम्पोर्टेंट। जो बुद्धि है उसे इंप्लीमेंट करने का इंपॉर्टेंस है, तभी तो तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई दोनों भी आसमान फाड़ सकते हैं। द मोमेंट यू बिकम समथिंग बेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग, आपका आइडेंटिटी दूसरा बनाना पड़ेगा। ये कोई भी नहीं बताएंगे, मगर आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी का मतलब मैं बताती हूँ, इफ यू आर अ कॉलेज वाला स्टूडेंट, आपको अभी लगना है कि आप क्लाउड इंजीनियर हैं। ओके, आप विजुलाइज करना पड़ेगा कि लाइक आप एक डेस्कटॉप में AWS का पोर्टल, एजर का पोर्टल, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्लाउड इंजीनियर है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, आप कुछ कोड कर रहे हैं, मैनेजर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बातें आपको रिपीट करना है दिल के अंदर, मन के अंदर। जब आप इतना जल्दी करोगे ना, देन द अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू। कैसे आएगा तुम्हें पता नहीं होने हैं, मगर तीसरा चीज, हर दिन पढ़ाई कर ली, बिकॉज नो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होना ही वाला है। नाउ यू कैन सी 2020 onwards AI का अपडेट है। इफ यू सी IoT, डोंट इवन थिंक, जस्ट जंप ऑन टू IoT, बिकॉज वो रियल फ्यूचर होगा, क्योंकि द मोमेंट IoT कम्स, डेटा इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फैक्टर। तो आप डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, you can do network engineering, security engineering. There are 10,000 jobs, also known as software engineer in simple terms. अब जो भी कर लो, अपने दिल से करना है। Okay, this is very important. Full interest and passion से करना है। If it is monotonous, it is high time you can change your company, or you can change your work or the project itself. मगर हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। Okay, expand, take one subject, उस subject के अंदर अच्छा तरह से curiosity से पढ़ना है। How to take it very curiously? Very simple. You have a technique called 5 wives, 1 husband technique. One husband का नाम है how. फर्स्ट वाइफ का नाम ये बंदी को मिला, सबको मिल जाएगा, उसका नाम है वाई, क्यों। देन व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, ऑल दिस विल ऑटोमेटिकली विल कम व्हेन यू आस्क व्हाई। ओके, ये फर्स्ट बीवी को टैकल करने में बहुत मुश्किल है, बाकी सारे ऐसे आजाद हो जा मुझे मिलेगा, मगर हाउ एंड व्हाई जमते नहीं। सो इफ यू फाइंड दिस, यू विल अंडरस्टैंड इन वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। एंड हैव योर ओन स्टोरी, आपका जो स्टोरी है वो इंपॉर्टेंट है। स्टोरी इज द वन विच गोइंग टू ऐड वैल्यू। जो मेरा स्टोरी है मैंने बता दिया है, आपकी जो स्टोरी है वो आपको पता चलना है। सो द मोमेंट यू हैव योर ओन स्टोरी, इंटरव्यू भी हो सकती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेज्यूमे। रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लाइक यू नो व्हेन आई सी सम रेज्यूमेस लाइक 3-4 पेजेस, मैं तो नहीं पढ़ने वाला है, डायरेक्ट टू द पॉइंट। बट जब उन्होंने 1 पेज में सब कुछ कंप्रेस किया है एंड टू द पॉइंट, मोर देन इनफ। इफ यू हैव वर्कड ऑन एजर, आपका क्या क्या है एजर में आपने काम किए हैं, उसके बारे में मुझे पूछ सकता है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, आप उससे सेम वे टेलर करना है। सो यू कैन यूज चैट जीपीटी और समथिंग। मगर एक चीज बता रहा हूँ, ATS में जब चलते हैं ना, अभी AI वाला है वो भी डिटेक्ट करेगा, तो आपको ह्यूमनाइज वाला आपका कंटेंट भी करना पड़ेगा उसमें। ओके,
So be ready, prepare yourself every day for interview as if today is your last day. आप कितना value add कर सकते हो उतना आप ऊपर चलते रहते हो. So that's it from my end. Akriti. ठीक है, थैंक यू सो मच आरन, लाइक दिस कन्वर्सेशन वाज़ रियली इंसाइटफुल और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर लाइक आवर व्यूअर्स विल आल्सो एन्जॉय इट। Thank you very much.